everyone. So today we are taking a topic that is called GOC, General Organic Chemistry. It's not a topic, I can say it's a whole chapter because we made this chapter to understand the roots of organic chemistry, because this is not a basic topic. This is not a specified chapter that's given by the NCRTs and the educators, but this is a topic that helps you a lot also. This is not a chapter according to any syllabus, but this helps you a lot in GOC. So GOC, General Organic Chemistry, we learning about the effects basically. And through the GOC we can able to compromise. पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंपैरिजन पे डिपेंड करती है. अगर आप कंपैरिजन करना अच्छे से सीख जाते हो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स, देन यू विल बी, आई थिंक यू विल बी टेस्टिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन द कंपैरिजन. अब कंपैरिजन हमारे बहुत तरीकों से होता है जो कि हमारे इफेक्ट्स को भी इफेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. मतलब कैसे तरीके से मैं समझाऊँ अगर आपको, कि जो इफेक्ट्स है हमारे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी भी कंपैरिजन को. अगर मैं किसी भी कंपाउंड्स के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्ट्स आते हैं जिसको आप एक्सेप्शनल का नाम दे देते हो. इफेक्ट कहते हो ये इफेक्ट आ रहा है, इसका आंसर इफेक्ट की वजह से वो क्या होता है, आपका ये ऑर्डर चेंज हो जाता है. हम पढ़ते आ रहे हैं किसी ऑर्डर को भी ये इस तरीके से चेंजमेंट होती है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस ऐसा आ जाता है कि वो ऑर्डर ही चेंज हो जाता है, कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है. जी, दीज मेनी थिंग्स आर हैपन विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू, और आई कैन से ड्यू टू इफेक्ट्स. So in organic chemistry, in general organic chemistry, we learning about the effects there. So there are two type of effects is present in the organic chemistry. General organic chemistry is primary effect and the secondary effect. In primary effects, we are learning about three topics. First is size, second was electronegativity, and third one is hybridization. Okay, on the three topics, on the basis of three topics, we can able to compare many questions, and we can able to solve many questions from these, covering these topics. Only three topics also. But in the secondary, that is a very important topic. I think a very important, every student should have knowledge about it. And because I know very well, every one student out of 10 students have a problem in GOC. But if you studies these four effects, you can, I think the basic of the organic chemistry get cleared. In the secondary factor, there are four topics that you have studied there. First is inductive effect, second is hyperconjugation, थर्ड वन इज रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज एरोटोमिसिटी. अगर मैं आपको बताऊँ ना, सिंपल ये हम सारी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें पता क्या होती हैं, जो हम ये इफेक्ट्स पढ़ते हैं, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, दीज आर मेनली, मैं सारे नहीं कहूँगी, मेनली आर हाइपोथेटिकल थिंग्स. ये किसी ने के दिमाग में आई, भाई ये चीज़ हुई है जब भी हमने इसको सोचा है. ये क्या, हमने कोई रिएक्शंस करी, अरे कुछ चीज़ इफेक्ट आई, हमने जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंजमेंट दिखी, तो हमने क्या किया, उसको करेक्ट करने के लिए, उससे समझने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कहते हैं ना, किसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेमतलब वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस क्या है, उस चीज़ को समझने के लिए. ऐसे ही यहाँ पर है, उस चीज़ को समझने के लिए, उस चेंजेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल थिंग्स को अपने अंदर लाते हैं और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बनाते हैं. अगर मैं बात करूँ बेटा हाइपर कंजुगेशन टॉपिक, इट्स ऑल होल टॉपिक इज अ हाइपोथेटिकल थिंग, जो कि क्या एक मनगढ़ंत है. तो chemistry is all over the hypothetical things. It's not a facts. Some reactions are the facts there, and reactions are fact there, but the effects and so many things are there. That is just a hypothetical cases. But you should knowledge about it because you have to clear the exam. So this is truth, bitter truth. Everyone have to follow it. So we are talking about the, now come on the topic, that's primary effect. The primary effect we are learning about the size effect here. The size, mainly if we are talking about the size effect, the size we are taken here the anionic size, because we already know, if we are talking about the periodic table, if we move from left to right in the periods, what happens, the size is decreasing, and from top to bottom, if we come from top to bottom, the size get increased. So what happened there, because of size increases, and there the anionic charge also increases, so that their stability is also increased. Mainly we are learning these factors together to know the stability of the compounds. Okay, so what happened, the more the ionic charge, the more the stability here. This is a size effect. Okay, now come on the electronegativity. This is just a size. Okay, it's easy, I think. Now come on the topic electronegativity. What electronegativity होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जब हमारे किसी मॉलिक्यूल के बीच में हमें पता है एक बॉन्ड बना होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जैसे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक अगर आपको ट्रुथ और बताऊँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ कुछ होती ही नहीं है.
इलेक्ट्रॉन जस्ट आर द वेव्स, वो एक वेव्स होती हैं। अब उनको हमने इलेक्ट्रॉन कैसे समझा, हमने क्या किया, जब हमारे जो साइंटिस्ट थे उनको क्या होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे फोर्स फील होता है। अब वो फोर्स को तो कुछ बता नहीं सकते वो कैसा फील होता है। अब उन्होंने देखा कि फोर्स वो कैसी फॉर्म का है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, वो अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। देन फाइन साइंटिस्ट गॉट टू नो दैट द पॉजिटिव चार्ज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, सो दे थिंक दैट इट्स an electron charge, but we can't see it because I think no one can able to see the electrons. Electrons are very minor particles, I think. So no one is seeing and no one able to see the electrons. So how we get to know about the electrons? It's helps because it's waves. It's found in the waves. The more waves are found there, the more waves or the more force we feel there, more negative force. अगर हम ज़्यादा फोर्स फील करते हैं, मीन देयर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर अकॉर्डिंग टू अवर थिंकिंग, कि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट, बिकॉज हमें वो कंसेप्ट ईजी बनाना है ना। अगर हम कहते हैं वो वेव्स की फॉर्म में, तो वेव्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कारण हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं कि भाई वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो बट लेट इट बी, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन हाँ, तो मैंने क्या कहा कि दो आपके क्या है, आपके पास एटम है, मान लो ए और बी, आपका एटम के बीच में क्या करें, एक बॉन्ड बना पड़ा है। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, किसी ना किसी आपके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से होने से क्या होता है, आपका यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब जिस एटम के पास ज़्यादा पावर होगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करने की, that effect it's called electronegativity. That's power of any atom called the electronegativity. It's high electronegativity, low electronegativity. मतलब क्या होगा कि any effect, if we are giving you the proper definition of it, a tendency to pull electron towards its electron density, basically electron density. समझे density ही क्यों कहा हमने, because these are waves. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की अपनी तरफ पावर जिसके पास होती है ज़्यादा, वही आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं उसे। अगर आपको समझ नहीं आया हुआ, कैन एक्सप्लेन इन अ बेटर वे और इजी वे। तो बच्चे हैं, उनके हाथ में क्या है, खाने की प्लेट है। अब क्या होती है, खाने की प्लेट में एक रोटी वो रखता है, दूसरी रोटी वो रखता है। अब एक बात बताओ, एक लड़का, एक जो आपके पास दूसरा लड़का है, दो लड़के हैं हमारे पास, एक जो लड़का है उसके पास मसल्स हैं, बहुत पावरफुल है वो तरीके से बात करूँ। दूसरा वाला थोड़ा सा स्लिम है और हाइट भी छोटी है, मतलब वो लड़ नहीं सकता। अब जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो क्या करेगा, दोनों रोटियों को लेकर भाग जाएगा। भाई वो तो गेम खेल रहा है उसके हिसाब से, जिसके पास पावर है वो क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। उनके लिए तो उसके लिए तो वो खिलौना एक तरीके से, वो क्या कर रहा है, उसको सामान हड़पना चाहते हैं प्रॉपर। तो ऐसे करते हैं, वो अपने इकट्ठा करते हैं, जिस क्यों कि हमें इसलिए भाई अब एक रोटी इसके पास है, ये भी नहीं झुक पाएगा प्रॉपर, उसका पेट नहीं भरेगा, ये उसका पेट नहीं भरेगा। तो क्या करें, हम दोनों शेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। हमें दोस्ती, हम क्या करते हैं, अपने खाने को शेयर कर लेते हैं। लेकिन क्या जो धींगरा है ना, जो उसके पास पावर है, वो क्या करेगा, वो अपनी पावर की हेल्प से दोनों रोटियों को लेके भाग जाएगा और अपना उसका पेट भर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, द पावर ऑफ दैट पर्सन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है टू पुल करने की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एटम्स, और रोटियां छीनने की। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अब तो, बहुत ईजी लैंग्वेज में। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द इन द पीरियोडिक टेबल। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है, अगर मैं आपके यहाँ पे ये अपोजिट वेरी करती है साइज से। अगर मैंने कहा साइज हमारे लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम बात करती हूँ तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं स्टेबिलिटी निकालती हूँ, भाई स्टेबिलिटी का साइज के, भाई मुझे क्या पता होगा कि हम वहाँ पर साइज लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव लेंगे, कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर भी लग सकता है और साइज ही फैक्टर भी लग सकता है। तो हम किसको प्रायोरिटी दें, कैसे समझे, कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है, इसका हम कंक्लूजन कैसे निकालें। तो व्हाट द साइंटिस्ट हैव डन, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो हम साइज फैक्टर को प्रायोरिटी देंगे, साइज के फैक्टर को, कि साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, दैट मीन देयर विल बी अ हायर स्टेबिलिटी। अगर मैं बात करूँ पीरियड्स के अंदर, दैट्स मूविंग फ्रॉम लाइफ टू राइट, वी टेकिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर देयर, ठीक है। तो दोनों के हम क्या करेंगे, हायर फैक्टर्स लेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द स्टेबिलिटी टू कंक्लूड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड और द मॉलिक्यूल। ओके, सो फ्रॉम देयर कैन आई से द स्टेबिलिटी ऑफ the stability of any group or any charge or any cationic or any form, I can say it can be concluded with the help of electronegativity in the size there. So size is directly proportional to the anionic charge, okay, because size increase, then anionic charge increase, and that means electronegativity is its stability is increased. But if we're talking about an electronegative factor, there should be, we can also that if the size increase there,
that means anionic charge increase there, so there should be electronegativity increase there, because both factors are coming each other from like this, top to bottom and left to right, because they are coming to the increasing point here. So can I say that electronegativity is directly proportional to the negative anionic charge also, and inversely proportional to cationic charge. समझ आएगा तुम्हारे हिसाब से टॉपिक, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बेसिस पर भी. दिस इज द सेकंड टॉपिक. ना third pottery, what I'm saying, it's sorry, I'm very sorry. Third topic is hybridization. हाइब्रिडेशन आपको पता होगा बेटा कि क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सॉरी ऑर्बिटल्स का क्या करते हैं, हाइब्रिड फॉर्म निकालते हैं. ऐसे हम पढ़ते हैं sp2 पढ़ते हैं, sp3 पढ़ते हैं, sp4 पढ़ते हैं. आप ये केमिकल बॉन्डिंग्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझोगे वो होता क्या है, क्यों होता है, कैसे हम समझ पाए हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल्स कैसे बने हैं, कैसे नहीं बना, सारा कुछ आप पढ़ लोगे उसके बारे में. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन वो कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी अगर हम यहाँ पे अगर हम डिटरमाइन करें किसी भी मॉलिक्यूल की कंपाउंड की स्टेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट कर दें कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो हम बेसिस पर किसकी फॉर्म करते हैं, हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग. अब हाइब्रिडेशन कैसे करते हैं, सब में पढ़ा, हाइब्रिडेशन के अंदर पढ़ा होगा अपने sp3 sp2. अगर sp3 की बात करूँ तो आपका टेट्राहेड्रल शेप बनती है इसके अंदर. sp2 की बात करूँ तो ट्रायंगुलर प्लेनर बनती है यहाँ पर, और sp की बात करूँ तो लीनियर फॉर्म बनती है हमारे यहाँ पर. अब बात आती है, चलो ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर यहाँ पे मैं जो मेन टॉपिक की बात करूँ, चलो भाई ये तो है कि हाइब्रिडेशन होती है और आपको स्टेबिलिटी हम बता देंगे, लेकिन वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है बेटा, वो करती है एस फैक्टर की एस परसेंटेज. जहाँ जितना एक्स परसेंटेज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इतनी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा ही स्टेबिलिटी. अब वो एक्स फैक्टर पे ही क्यों डिपेंड करते हैं, बिकॉज एस ऑर्बिटल आपका मोर क्लोजेस्ट होता है न्यूक्लियस के, जिस कारण से मैं कह सकती हूँ कि जो एस ऑर्बिटल है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटेन कर लेता है. अब क्या होता है यहाँ पर एस करेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा यहाँ पर, अगर मैं sp3 की बात करूँ, 3 ऑर्बिटल्स ऑफ द p एंड 1 ऑर्बिटल ऑफ s हेयर, सो s के पास हमारा कितना परसेंटेज आता है, ओनली 25% आता है. अगर sp2 की बात करूँ तो s का करेक्टर होता है, s की परसेंटेज होती है यहाँ पे आपकी 33%, और sp की बात करूँ तो यहाँ पर होता है 50%. दैट इज द मोर sp एक्स करेक्टर प्रेजेंट देयर, द मोर स्टेबिलिटी फॉर्म देयर. ओके, सो दिस इज हो गया आपका एस करेक्टर के बेसिस पर. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं बॉन्ड एंगल पर आती हूँ यहाँ पे, तो टेट्राहेड्रल के अंदर तो हमारा बॉन्ड एंगल बनता है आपका 109 डिग्री का, स्क्वायर प्लेन के अंदर बनता है ट्रायंगुलर प्लेन के अंदर बनता है आपका 120 का, और एसपी के अंदर बनता है तो 180 का. तो मैं ये भी कह सकती हूँ जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा इतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी. तो बॉन्ड एंगल के हिसाब से बता सकती हूँ मैं उसका मैं एस करेक्टर के हिसाब से भी बता सकती हूँ. तो 3 चीज़ों के हिसाब से मैं क्या कर सकती हूँ, स्टेबिलिटी आपको डिफाइन कर सकती हूँ. नाउ अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर हाइब्रिडेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम. अब क्या पढ़ते हैं हम, कुछ एटम्स बेटा जो कि हम जनरली पढ़ते ही हैं केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज कॉल्ड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. ओके, जो हम ये 4 कंपाउंड है, 4 एलिमेंट्स उसको हम पढ़ते ही हैं, जो कि क्या कहते हैं रूट्स हैं हमारे आई थिंक द फ्लोर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज दीज आर द मोस्ट आई थिंक mainly the considering to best for the reactions in organic chemistry. So जो हमारे 4 हमने यहाँ पर हमने लिए हैं एटम, और उनका हम क्या ऑर्डर लिखते हैं. ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन, और देन उसके बाद कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन अकॉर्डिंग टू दीज 4 द कंपेरिजन ऑफ 3. ओके, सो हम यहाँ क्या करते हैं इनका हम हाइब्रिडेशन लिख लेते हैं कैसे. यहाँ पर अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो कार्बन sp3, फिर उसके बाद sp2 कार्बन sp, उसके बाद हम करते हैं बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन sp3 sp2 sp, उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीजन का sp3 sp2, sp नहीं बनता ऑक्सीजन का, उसके बाद हम लिख देंगे ऊपर डायरेक्ट फ्लोरीन लिख देंगे आपका. अब क्या करना है आपको, अगर मैं लास्ट से बॉटम से बात करूँ तो आपका कार्बन sp बनता है वहाँ पर, और ऊपर उसके क्या बनता है आपके नाइट्रोजन sp3. तो आपको क्या करना है, जो कार्बन sp3 है ना उसको ऊपर रख देना है, और नाइट्रोजन sp3 को आपको नीचे रख देना है. समझ में आया. अगर ऊपर से बात करूँ तो हमने ऊपर से आपको देखोगे, आप वहाँ दिखेगा आपको NSP दिख रहा है. अगर आपको NSP दिख रहा है तो उसको क्या करो, ऊपर कर दो और OSP3 को नीचे कर दो. दिस इज द बिकम द वर्टिकल अरेंजमेंट, जिसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे विद ईजी मेथड. आई थिंक अगर आपको स्टेबिलिटी को डिफाइन करने की स्टेबिलिटी पूछी जाए, कंपेरिजन करने के लिए दी जाए, तो यू कैन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ 3 टॉपिक्स. सो बाय बाय.